So let's start with the quiz. So this quiz is going to have 3 rounds. All right. First round is going to be the conventional quizzing round, where we're going to be doing 2 rounds of questioning with all 4 teams. All right. In the second round, we're going to have an audio-visual round, where there'll be an audio-visual clip that is going to be played for the teams, and they have to guess at which landmark event or which scheme are we referring to. The third round is going to be the buzzer round, where we're going to be giving them a mixed bag of 6 questions, which they need to answer, and it's the fastest person to get to the buzzer. All right? So the first 2 rounds are going to have negative marking of -1 if you get the answer wrong. If you get the answer right for a question that has been posed to you, you get a +10. In the second and third round, we will allow for passing of questions. When a question is passed and you get it right, you get a +5. If you get it wrong, you get a -1. Teams, are we okay with the rules? Your question is this. Prime Minister Modi launched multiple Vande Bharat trains, taking the total count to 34 across multiple states. How many Vande Bharat Express trains did the Prime Minister launch recently? Your options are A1, B7, C5, D9. Option C5. Option C5. Audience, what do you think is the right answer? How many in favor of 9? How many in favor of 5? Okay. So the right answer is... Somebody saying 7 also now. The right answer is option D9. I'm sorry, you've got the wrong answer. Okay, I mean, why are you all being happy if they have not got the point? Okay, the next question goes to the second team. Let me read it out to you. With visionary reforms since 2014, the Indian economy has ascended to become the world's 5th largest and is on track to potentially claim the 3rd spot. The International Monetary Fund called India a dash on this otherwise dark horizon. Your options are highlight A, B is crowning jewel, C is bright spot, and D is growth engine. Option C, bright spot. Absolutely right answer. 10 points to Team B, please. The next question goes to Team C. At the latest edition of the Asian Games in China, javelin maestro Neeraj Chopra won a gold medal and boxer Lovlina Borgohain won a silver medal. Which Indian government initiative supports these athletes with top-tier training? Option A, Khelo India. Option B, Fit India Movement. Option C, the Target Olympic Podium Scheme or TOPS. Option D, none of the above. Option A, Khelo India. I'm sorry, that is the wrong answer. The correct answer is the Target Olympic Podium Scheme or TOPS. The next question goes to Team D. One branch of the Indian Armed Forces began the preparations to mark its 91st anniversary on October 8th. The festivities began in Bhopal, Madhya Pradesh. Can you name the force? Your options are A, the Indo-Tibetan Border Police. Option B, the Indian Air Force. Option C, the Indian Army. And D, the D option, which is the Indian Navy. No, that's the wrong answer. I believe somebody in the audience wants to answer it. No, unfortunately, all of you have gotten wrong. It's the Indian Navy. Okay, now we're going to go towards the second round of the conventional quizzing. A Made in India main battle tank developed by the Defense Research and Development Organization is the pride of the Indian Army's Armored Corps. What is the tank called? Your options are A, Arjun, B, BrahMos, C, Pinaka, or D, Tejas. Arjun. That's the right answer. 10 points to Team A. The next question to Team B. Indian athletes are bringing laurels and glory to the nation with their performance at the Asian Games.
Can you guess the number of medals they have won in total? Option A is 50, option B is 75, option C is 25, and option D is over 80. Option D, over 80. Absolutely the right answer. Can somebody give me the current medal tally? Okay, 90 plus from here. Okay, so here the quizzers are saying it's updated to 90 plus. You have to get your facts right. 92 according to Team C. What was the last medal we won? What was the 92nd medal? I think 5,000 meter race. What was the last medal that we won? What was the 93rd medal we won? To my knowledge, I think it's archery. Let's move to the next question. So last year, the Modi government initiated a campaign to offer 10 lakh government jobs to India's youth. So far, 8 Rozgar Melas have been held where Prime Minister Modi has given out thousands of letters of recruitment. Through the Rozgar Mela, how many youth have received recruitment letters? Your options are A, around 2 lakh, B, around 6 lakh, C, around 4 lakh, or D, around 50,000. You want to take a guess? No. Anybody from the audience wants to take the question? How many appointment letters do you think we have issued? Yeah. 50,000? Okay, we have somebody who says 50,000. 2 lakhs. 4 lakh letters have been issued. Okay, the last question. Over the last 9 years, India has witnessed remarkable growth in installed solar capacity. From having no standing on the global scale barely a decade ago, today India has dashed the largest installed solar power capacity. Your options are A, 4th, B, 5th, C, 1st, or D, 8th. A4. A, 4th? That's the right answer. Please give 10 marks to Team D. Now we're going to be moving to the second round. So this is the round that we, like I told you, is the audio-visual round. What is Prime Minister Modi speaking about? All right? So we're going to be playing an audio-visual clip and there's going to be a follow-up question. आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। Okay, so your question is as follows. 50 crore, which is greater than the population of the United States of America, beneficiaries are covered up to rupees 5 lakh for treatment in any hospital under a scheme that was launched in 2018. Name the scheme. Team A. Ma'am, pass. This question is now open for the other teams to answer. Team B. It's Ayushman Bharat scheme. Absolutely right. 5 points to Team B. Okay, now for the next clip. आज औसतन 8 या 10 दिन के भीतर भीतर भारत में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है, यूनिकॉर्न में बदल रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि शून्य से शुरू करके किसी एक स्टार्टअप का यूनिकॉर्न बनने का मतलब होता है कि इतने कम समय में करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की पूंजी तक पहुंचना, तब एक यूनिकॉर्न बनता है। और आज 8-10 दिन में एक नया यूनिकॉर्न इस देश में हमारे नौजवान बना रहे हैं। साथियों, ये भारत के युवाओं का सामर्थ्य है, सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करने की इच्छा शक्ति का उदाहरण है।
So your question is the following. Are you ready? On the global scale, what is India's ranking in the startup ecosystem in terms of size? We are the dash largest startup ecosystem in the world. What number are we at? First. I'm sorry, that's the wrong answer. 1 second. Teams, you can now attempt the question. Team D. Third, ma'am. Absolutely right. 5 points to Team D. Let's move to the next clip. भारतीय रेल में यात्रियों के लिए अगर ट्रेन चलता फिरता घर होती है तो हमारे रेलवे स्टेशन भी उनके अस्थायी घर जैसे ही होते हैं। आप और हम जानते हैं कि हमारे यहां हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी बहुत बदलाव नहीं आया था। So your question is as follows, Team C. A new scheme has been started to ensure the redevelopment of railway stations in line with global standards and with every modern amenity. Name the scheme. Okay. Other teams, your time to attempt the question is now. Team D. Ma'am, Amrit Tulya Bharat or Amrit Bharat station is. That's absolutely right. 5 points to Team D. It's the Amrit Bharat station scheme. I must say Team D has done very, very well in this round. Other teams, time to buck up. Let me come to your question now and play the clip for you. योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। इसका कितना लाभ हुआ है, ये हमने कोरोना काल में देखा है। जब बाहर आना जाना बंद था, काम धंधे बंद थे, तब करोड़ गरीब परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। Okay. So Team D, I think we're going to make this a little challenging. First is you need to name the scheme, which I think is pretty evident. And second is there is a new development that has happened in the scheme very recently. If you can give that to us, we would like to give you 2 more points as bonus points. Yeah, first the name of the scheme. Ujjwala Yojana. Correct. What is the new development that has happened in the Ujjwala scheme? Is that related to something, the refilling of the cylinders? No, that is not right. So we will give them the correct marks for getting the correct scheme right. I will now open it up to the other teams. For two bonus points, there will be no negative marking on this. This is a bonus question. What is the new development that has happened on Ujjwala? Reducing the price of the gas cylinders so that everyone can afford it. No, that is not right. Let's open it up to the audience. What has happened in Ujjwala? Yes, right there. Absolutely. The subsidy has now been increased from 200 rupees to 300 rupees. Absolutely correct answer. Now let's move to the next round, which is going to be the buzzer round. Okay. So here also, when I will say that, okay, now you can press the buzzer, is when you go at the buzzer. Okay, teams. Your first question. How many years after our independence were made in India 105 mm artillery guns used for the ceremonial 21 gun salute on Independence Day? Your options are A, after 25 years, second, after 50 years, third, after 75 years, or fourth, after 35 years. Time to buzz is now. Yes. 75. Absolutely right. 10 points to Team B. The next question. How many startups have been recognized by DPIIT, which is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade so far? Your time to buzz is now.
Anybody in the team who would like to take it? Yes. Okay, that's the wrong answer. Anybody from the audience? Okay, somebody says 25,000. No, that's the wrong answer. Now the teams cannot buzz anymore. Now it's moved to the audience. 99,000, that's very close. 1 lakh startups have been recognized by DPIIT. Let's move to the next question. Name the elite horse that served as the president's bodyguard since 2003. This particular horse appeared 13 times in the Republic Day celebrations and retired at the 73rd Republic Day. Give me the name of this horse. This was in the national dailies all over. Your time to buzz is now. Yes. Chetak. I'm sorry, that's the wrong answer. One more attempt for the teams and then we move it to the audience. Pavan. No, that's a wrong answer. Audience, yes. Virat is absolutely right. That's the right answer. Okay, next question. What is the name of the landing point of Chandrayaan-2? This has been in the news quite a bit. What is the name of the landing point of Chandrayaan-2? Your time to buzz is now. Yes. Shiv Shakti Point. I'm sorry, that's the wrong answer. It is not Shiv Shakti Point. Chandrayaan-2's landing point. Tiranga Point. You cannot take it that. Sorry. Yes, Tiranga Point is the right answer, but I will have to invalidate that question. This question, I think the team should be eager and your hand should be on the buzzer already. What is India's current rank at the 19th Asian Games in China? Okay, teams, time to buzz is now. Team A. Ma'am, 4th. Absolutely right, 10 points to Team A. Okay, I'm going to give you one bonus question. This is something I think very close to the heart of students and most of you might know this. What was the name of the mission when India safely brought back over 20,000 students from Ukraine? Your time to buzz is now. Team D. Ganga. Absolutely right, 10 points to Team D. Let us come back to the question to which Team D had a doubt. So let us get that clarified as well. So the question, if I'm correct, was this. One branch of the Indian Armed Forces began the preparations to mark its 91st anniversary on October 8th. The festivities began in Bhopal, Madhya Pradesh. Can you name the force? Your options were ITBP, Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy. You answered Indian Air Force. We have confirmed that with our research team. Please give them 10 marks for that. So can we have the scores to see if we are going to have a tiebreaker or not? Who do you think is going to win? Team A, B, or C or D? Audience did fabulously well. They are a league apart. Okay, so I have some questions for the audience till the scores are getting prepared. What is the full form of JAM Trinity? Put your hands up. It's for the audience. We have put you under the scanner quite a bit. Okay, audience. What is the full form of JAM Trinity? Yes. phone में देख लिया? बताइए. हाँ. Absolutely, it's Jan Dhan, Aadhaar and mobile. Absolutely right. अब आप मेरे को ये बताओ कि Jan Dhan योजना क्या होती है? What is Jan Dhan योजना? Can somebody raise a hand and just tell us what is your understanding? Even in the audience, here also somebody can tell us. Yes, what is your understanding of Jan Dhan Yojana? Bank accounts were opened for every section of the people so that they can have account and money saved in their bank accounts. Absolutely. So multiple bank accounts were opened to give access to as many people to formal banking sector.
Can you guess how many banking accounts have been opened under the PM Jan Dhan Yojana? Take a guess. How many new accounts have been opened? Sorry? Okay, team D says 3 to 4 crores. Anybody else here? Around 3 crores in the audience. कोई 10 करोड़ बोल रहा है? 5 करोड़, 7 करोड़, वाह. Can I tell you one thing? It is 50 crore accounts that have been opened under the Prime Minister Jan Dhan Yojana. And since these new accounts have been opened, we have got 2 lakh plus crore rupees that have been made into new deposits. All right? So our scorekeeper, Arshia, has very kindly calculated the scores. And the winners of the quiz are Team D, who are leading the quiz with 50 points. Excellent. Heartiest congratulations to Team D. Very well done, Team B. And I think very well done to all of you. Thank you very much. You may join your friends now. यही समय है, सही समय है. कैसे लगता है आपको यही समय सही समय है? जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिखाया है. साउथ पोल चंद्रमा पे चंद्रयान मिशन की सफलता, शिव शक्ति पॉइंट पे जाने का. इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? यही समय है. भारत ने आज तक पिछली बार मेडल जीते थे एशियन गेम्स में 70 मेडल्स. उससे पिछली बार 2014 में 57 मेडल और अब की बार 100 पार होने वाले हैं. यही समय है. तो भारत के खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार. दुनिया भर के देशों में देखा जाए, मैं तो कहूं अगर मान लीजिए यहीं पे कुछ हो जाता है, चाहे चांसलर साहब हरिमोहन गुप्ता जी भी चाहेंगे, अगर 2 लोग लड़ लेंगे तो उसको सुलझाने में बहुत समय लगेगा. लेकिन किसी दूसरे देश में युद्ध चल रहा हो, बॉम्बिंग हो रही हो, मिसाइल चल रही हो, रॉकेट लॉन्च हो रहे हो, ड्रोन से हमले हो रहे हैं और उसके बीच में 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फंसे हों और किसी देश के प्रधानमंत्री फ़ोन करके उन दोनों देशों के राष्ट्रपति से कहें कि युद्ध विराम करना होगा क्योंकि भारत के छात्र छात्राओं को सुरक्षित निकालना है, तो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया. प्रधानमंत्री मोदी जी के कॉल पर ऑपरेशन गंगा चला. यही समय है. यही नहीं, जब हम सत्ता में आए 2014 में, they were telling us India is among the fragile 5 economies of the world because the policy paralysis to the other corrupt systems of the former government led to a situation where Indian economy was on the verge of, the world looked at it like collapsing and they started withdrawing the investments and all. Now, that was a tough situation in a country like India with 1.4 billion people. And from the fragile 5 economies to the 5th largest economy of the world, this shows that reform, perform and transform what Prime Minister Modi said, and he has finally delivered. India is the 5th largest economy of the world today. Yahi samay hai. And in the last 4 years, time and again, there were so many surveys done by different agencies, and it is only one person who is coming time and again with 76% or the 78% popularity rate as the world's most popular leader, and his name is यही समय है. तो भारत के लिए इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? From sports to space, science to startups. अब इसमें देखा जाए, साइंस का 2 जगह पे बहुत बड़ा रोल आया है. एक 2 साल पहले जब कोविड आया तो दुनिया के सामने
if I have to say this, and others will also agree, in the last century, the biggest challenge for the mankind was the COVID-19 pandemic. Nobody had the answer in the initial years. I still remember we had the parliament session running, and Prime Minister called a meeting and he said, what is to be done? The numbers are increasing. India may get impacted because of this. What should be done? He took everyone's view. Nobody knew what is going to happen. And at the midnight, the lockdown was announced. And the way he took decisions one after another, and the way he believed in the scientists of India and gave the entrepreneurs the opportunity to come out with the vaccines. Though many such leaders, the opposition leaders in the country from Congress to Samajwadi Party has been saying, the vaccine is made in India, don't believe in it. लेकिन मैं धन्यवादी हूँ आप जैसे युवाओं का जो समझदार थे, वैक्सीन लगाई भी, दो ने नहीं 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में किसी देश में लगी तो उस देश का नाम भारत है और भारत के साइंटिस्ट ने ही उसका निर्माण किया. एक नहीं दो वैक्सीन बनाई. When I talk about startups, I still remember in 2019 when I became the Minister of State for Finance, Prime Minister called me and Nirmala ji and said, listen, you have to solve the issues of startups. They have certain issues with the factory inspection to the taxation and so the other issues. You need to sort it out at the earliest. Our youth can do wonders. And he used to take meeting every month on what steps has been taken. Today I can proudly say the Indian youth has delivered from nowhere in 2014 to bring India among the top 3 startup ecosystems in the world. With 1 lakh startups in the country. और केवल हम 1 लाख स्टार्टअप्स पे नहीं रुके. आज भारत में 107 यूनिकॉर्न्स हैं, यानी कि एक यूनिकॉर्न का मतलब है $1 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन. 8,500 करोड़ की एक कंपनी होगी तो कई हजार लोगों को रोजगार भी दिया होगा. ये किसी और ने नहीं किया, ये भारत के युवाओं ने करके दिखाया है. इसीलिए कहा है यही समय है. Now if I have to move forward, the key points. Fragile 5, I have already said, I have already mentioned about it. Transition begins and course correction, it was started in 2014. And Prime Minister Modi in the initial years very rightly said, reform, perform and transformed. In the last 9 years, we have seen how he has taken the big steps towards reforms. Even during the COVID-19 pandemic, when he called a meeting of smaller group of ministers, 3-4 of us, and he started discussing with us that how we can open a few more sectors from coal and mining to defense production, to the space sector and the agriculture and many other such sectors. And some of us has apprehension whether is this the right time during the COVID-19 pandemic to open the sectors, to bring in reforms. But he was very, clear about it, that we should do it. And look the change within a couple of years. डिफेंस प्रोडक्शन को खोला गया, 1000 आइटम्स के लगभग को बैन किया गया. आज भारत की 2 साल के अंदर प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपया है डिफेंस प्रोडक्शन और 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है. भारत सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश था. आज भारत उस दिशा में बढ़ रहा है कि भविष्य में दुनिया के टॉप 3 डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स में से एक भारत होगा. ये हमारी ताकत है. आत्मनिर्भर भारत, उसको बल देने का काम जो मात्र 3-4 वर्षों में एक बदलाव देखने को मिला. दूसरा, ये जो आपके हाथ में फ़ोन है जिससे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, ये कभी ने बंद नहीं करना. मैं बता रहा हूँ, कईयों ने फ़ोन ही नीचे कर दिया. ये आज से 6 साल पहले ये कहाँ से आता था? चाइना, वियतनाम, ताइवान, उससे पहले आता था स्वीडन से लेके अन्य देशों से. हम एक पॉलिसी लेकर आए कि मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे. From the second largest importer of the electronic goods and the mobile, in just 6 years span, India has become the second largest manufacturers of the mobile phone. Apple जैसे फ़ोन जो iPhone है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी अब इंडिया में होती है.
तो सब संभव है। आत्मनिर्भर होने की शुरुआत कहाँ से हुई? कोविड-19 पेंडेमिक में मास्क नहीं थे, पीपी किट नहीं थी, वैक्सीन का कोई नामो निशान नहीं था। हमने अपने देश की पूर्ति भी की और दुनिया भर की पूर्ति करने का कार्य भी किया। सो वहाँ से करते करते कोर्स करेक्शन करते करते हम कहाँ पहुँचे? वी आर अमंग द top 5 economies of the world, and as the IMF leader has said, India is the bright spot in the world economy. ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया का मानना कि एक चमकते हुए सितारे के रूप में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में नजर आता है, जबकि दुनिया भर में मंदी होने के आसार हैं, भारत चमकते हुए सितारे की तरह आगे बढ़ रहा है। ये पूरा चार्ट आप इसमें जा सकते हैं कि पहले क्या कारण थे, अब क्या है। अगर आप इसमें देखेंगे चार्ट में, तो रीजंस पहले वाले क्या थे? पूर्व की सरकारों में स्कैम थे, क्रोनी कैपिटलिज्म था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। गठबंधन की सरकार थी, वहां ए राजा खींचते थे तो 2G स्कैम हो जाता था, कोई दूसरा खींचता था तो यूरिया का स्कैम होता था, कोई तीसरा खींचता था तो पनडुब्बी का स्कैम होता था, एक और आया तो देवास का स्कैम, अंतरिक्ष का स्कैम हो गया। कोई जगह नहीं छोड़ी, अंतरिक्ष से लेके पाताल तक, कोयले से लेके अन्य तक स्कैम ही स्कैम हुए। लेकिन 2014 में 1984 के बाद 30 वर्षों के बाद किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और तब से लेकर अब तक एक भी स्कैम देश की सरकार में नहीं देखने को मिला। ये बड़ा बदलाव है, बड़ा अंतर है। फिर उस समय क्या था? अगर आप 2013-14 के, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू यूज इंटरनेट, यू कैन सर्च ऑनलाइन। In 2013-14, there was no COVID-like situation, there was no recession in the world. Even then, the inflation in the country was up to 13%, 13% महंगाई दर थी। आज 4.5-5% है। एवरेज अगर मोदी सरकार के 9 साल का देखोगे तो 4.5% से ऊपर नहीं जाता है। ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब आप बाकी हिस्सों पे भी देखेंगे, रेटिंग्स पूर्व की सरकारों में डिग्रेड हो रही थी, एफडीआई वापस आ रही थी, कम हो रही थी, और हमारा फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट भी और फिस्कल डेफिसिट दोनों में ही बढ़ोतरी थी। अब इनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज तक का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास हैं। आज तक की सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2021-22 में आई, लगभग $83 बिलियन होगी, अगली किसी स्लाइड में होगी। $83 बिलियन। जब दुनिया संकट में थी तो भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही थी। ये विश्वास किसी भी देश के नेतृत्व पर है। और ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, कैसे इंडिया 2002 से लेकर अब 2023 तक कैसे पहुंचेगा। आप देखिए इकोनॉमी कहाँ थी, हम लोग कैसे कैसे ऊपर आए। हम 10वें नंबर पे थे, देखिए इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है और ये इंडिया 5वें नंबर पर पहुंच गया। और अब देखिए आप, इंडिया 2027 में 3रे नंबर की इकोनॉमी होगा, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। और हमने किया कैसे? मैं पहले पॉइंट से शुरू करता हूं, अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। लास्ट माइल डिलीवरी की और वेलफेयर स्टेट की जब हम बात करते हैं, 2 कारण हैं। एक, आपकी आमदन बढ़े तब आप गरीब कल्याण की योजनाएं ज़्यादा चला सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप साथ साथ में अपना डिलीवरी मैकेनिज्म को बेहतर करोगे, ट्रांसपेरेंसी लाओगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे, तो जो बीच में से खाने वाला सिस्टम है वो बाहर निकल जाएगा और आपका जो एक्चुअल एंड यूज़र या जिसको मदद मिलनी चाहिए उस तक वो मिल पाएगी। मोदी सरकार ने दोनों काम किए, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की और साथ ही साथ जो फेक ऐसे हमारे अकाउंट्स थे उन सबको बाहर निकाला। ऐसे करोड़ों अकाउंट्स जहां पर दिखाया जाता था कि बेटी पैदा हुई, उसके नाम पे पैसा लेते थे, उसके नाम पे पैसा जमा होता था, उसकी मां को गर्भवती दिखाया जाता था, उसके नाम पे पैसा मिलता था, वो बेटी की स्कूल की शिक्षा में कुछ सालों में उसको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता था, आने वाले वर्षों में उसकी शादी भी दिखाते थे, विधवा भी दिखा देते थे जो कभी पैदा ही नहीं होती थी। ये कागजों में कार्रवाई थी। बट जनधन, आधार, मोबाइल, ये त्रिशक्ति के कारण जनधन खाते खोले, आधार कार्ड बनाया और मोबाइल के उपयोग से
अगर आपको डीबीटीज डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर करना शुरू किया तो अब खाने वाले बाहर निकल गए और सीधा खाते में पैसा आता है और देश का पैसा भी बचता है, गरीब के हित में योजनाएं भी सफल होती हैं। उसका एक बहुत बड़ा योगदान यहां पर आपको देखने को मिलता है। एक क्रेडिट, जब खाते खोलेंगे तो एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि गरीब का खाता क्यों खुलेगा। कब लगा था ये? 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए, बैंक खाता। आप में से कभी कोई अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गया है स्वयं? कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। अब मैं तो देखिए मेरी उम्र ज़्यादा होगी, जब हमारे ज़माने में खोलते थे तब 2 लोग साथ में लेके जाने पड़ते थे विटनेस के रूप में, और वो विटनेस के रूप में भी पता नहीं फिर खाता खुले ना खुले, मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता था। उसके कारण ही गरीब का खाता नहीं खुलता था। मोदी जी ने बैंक वालों को कहा वो नहीं आपके पास आएंगे, अब बैंक वाला गरीब के घर जाके बैंक खाता खोलेगा। 45 करोड़ बैंक खाते, 450 मिलियन बैंक अकाउंट्स वर ओपन इन जस्ट 2 years स्पैन। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, हमने किया। आज जो कहते थे कि गरीब के खाते में 1 रुपया जमा नहीं होगा, फॉर योर नॉलेज आई वुड लाइक टू से दोज 450 मिलियन अकाउंट्स हैव more than 2 lakh crore rupees deposited today। जो गरीब कभी इस सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं था, उसमें आया। दूसरा उसका लाभ उसको क्या मिला? उसको क्रेडिट मिलना शुरू हुआ। बाहर उसको 36% साल के ब्याज पे पैसा मिलता था, अब 10% पे मिलता है। गरीब की बचत भी हुई। मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो शायद ज़्यादा समय लग जाएगा। किसान को बीज तक आने का, बीज मिलने का, बीज से लेकर बाजार तक अपनी पैदावार लाने के लिए ई नैम फैसिलिटी, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, उसका भी हुआ। पॉवर्टी एलिवेशन की बात करूं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इनकम लेवल्स में बहुत सुधार हुआ, और इससे आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 25% से कम होकर 15% रह गई। अगर आप इस स्लाइड पे देखेंगे सेकेंड ऑर्डर में और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट, आप शुरू में देखिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब देश में गरीबों को लकड़ी लेने नहीं जाना पड़ता, उनको रसोई गैस का सिलेंडर मिला है 9.5 करोड़। उसका इम्पैक्ट ये आया है कि महिलाओं का समय भी बचा और सेहत में भी सुधार हुआ, धुएं से मुक्ति मिली। दूसरा, आवास योजना, 1.5 करोड़ पक्के मकान ही बन पाए थे इतने वर्षों में, मोदी जी ने 9 वर्षों में 4 करोड़ पक्के मकान बना दिए और महिलाओं के नाम पे बैंक ये मकान दिए हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? डिग्निटी के साथ रहने का अवसर मिला, शौचालय बनाए गए 12 करोड़ के लगभग, तो महिलाओं ने इज्जत घर लिखा। आप अच्छे परिवारों से आते हैं, आपके घरों में शुरू से टॉयलेट था, आपने शायद नहीं देखा होगा। मैंने देश के लगभग 500 जिलों में ट्रैवल किया है। सुबह की ट्रेन मुझे लेने की आदत थी, सुबह का प्लेन, या सुबह बाय रोड निकलो तो आप देखोगे सुबह शाम पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे, खेतों के किनारे लोग खुले में शौच करने बैठते थे। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी, गंदगी भी फैलती थी और उनके साथ अत्याचार के बड़ा कारण एक वो भी समय रहता था। इन सब से मुक्ति दिलाई तो महिलाओं ने, मोदी जी ने नहीं दिया, महिलाओं ने उस टॉयलेट के बाहर लिखा इज्जत घर, डिग्निटी के साथ रहने का एक अवसर दिया, वो भी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद। कहनी छोटी बात लगती है शौचालय, लेकिन वो भी मिला तो 75 सालों के बाद, तो इसी सरकार के समय मिला। जल जीवन मिशन, अब शहरों में भी कई जगह पानी नहीं आता, दिल्ली जैसे शहर में भी, देश की राजधानी में भी टैंकर से पानी मिलता है कई जगह पे। मैं तो पहाड़ी राज्य से आता हूं, पानी बरसता बहुत है लेकिन बहकर चला जाता है। अब 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का कार्य पूरा कर लिया, अगले 2 साल में हर घर को नल से जल पूर्ण कर लिया जाएगा। तो महिला के जीवन में बदलाव देखिए, लकड़ी लेने नहीं जाना पड़ेगा, खुले में शौच करने नहीं जाना पड़ेगा, पानी लेने के लिए समय बर्बाद नहीं होगा। ये 3-4 घंटे अगर एक दिन में बचते हैं तो महिला के जीवन में कितना बड़ा सुधार है। ये हम क्लासरूम में बैठकर शायद अनुभव ना कर पाएं, लेकिन जिनके जीवन में उसको फर्क पड़ता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर 1 हफ्ते के लिए हम मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? हम सोच रहे हैं जागरण यहाँ यूनिवर्सिटी में बंद कर दिया जाए, अरे मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना? यहाँ पे सोच रहे हैं कोई पड़ेगा फ़र्क?
अब जब तक डिसरप्शन नहीं होती तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हुआ क्या है। दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा आपके पास है, सबसे ज़्यादा डेटा आप कंज्यूम कर रहे हो। अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ उस दिशा में बढ़ रहा है। इसी तरह से ही जब तक ये ना लगे कि इस पूरे कैंपस के टॉयलेट बंद हो गए तब आपको पता चलेगा उनके साथ बीतता क्या था। वो एक महिला के बारे में सोचिए, उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। इसका थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट की बात मैंने इसलिए की, कई बार हम बाहर से देखने से अनुभव नहीं होता, लेकिन जो नीचे काम करते हैं उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे अमृत जनरेशन में, मैंने पहले बताया, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर अब 100 से ज़्यादा हमारे यूनिकॉर्न्स हैं और 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स देश में हैं। गति शक्ति की बात मैं इसलिए मित्रों करना चाहता हूं कि हमने एक्सपेंडिचर 5 गुना ज़्यादा बढ़ाकर इस बार 10 लाख करोड़ रुपया इसी 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। ये जो देश भर में नेशनल हाईवे से लेके एक्सप्रेस वे से लेके आप बाकी बनता देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मोदी सरकार इस पे पैसा खर्च कर रही है। और अगर आप इसमें देखेंगे, मेजर पोर्ट्स में हम 725 मिलियन टन कैपेसिटी को ऐड करने जा रहे हैं। हाईवेज में हमने इतनी कंस्ट्रक्शन की है कि पूर्व की सरकारों से लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा हमने रोड कंस्ट्रक्ट किए हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइन हमने 23,000 किलोमीटर बिछा दी है और 12,500 किलोमीटर रोड हमने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पूरे कर लिए। एयरपोर्ट आज़ादी से लेकर 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे, हमने 9 साल में 75 न्यू एयरपोर्ट बना दिए। 7 IIT और 7 IIM 2014 तक थे, हमने पिछले 9 सालों में 9 नए IIT और 7 नए IIM बना दिए। 2014 तक 620 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 9 सालों में 700 नए मेडिकल कॉलेज बना दिए। 7 एम्स थे 2014 तक, हमने पिछले 9 सालों में 15 नए एम्स बना दिए। आधा किलोमीटर मेट्रो बनती थी 2014 तक, हम 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा बनाते हैं। इंडिया इज अमंग द 4th लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम्स इन द वर्ल्ड नाउ, और हम जल्द ही 2nd तक पहुंच जाएंगे अगले कुछ सालों में। ये एक नहीं अनेक योजनाएं। गति शक्ति से हुआ क्या है, हमने सबको टेक्नोलॉजी से ले आए हैं। मान लो अगर अभी कोई नया प्रोजेक्ट बनना है, उसके अंदर 1600 लेयर्स हैं। पाइपलाइन कहाँ से जा रही, बिजली की तारें कहाँ जा रही, यूनिवर्सिटी है क्या, कोई ग्रीन प्रोजेक्ट यहाँ पे तो नहीं है, कोई वाइल्ड लाइफ तो नहीं है, वो सारा सिस्टम पे दिखता है। पहले प्रोजेक्ट शुरू हो जाता था, फिर मुकदमे होते थे, अब वो सारा खत्म कर दिया है और गति शक्ति के कारण सही मायने में गति भी मिली है। इस पे दाहिने और पे एक ट्रेन देख पा रहे हैं, ये कौन सी ट्रेन है? वंदे भारत में किसी ने सफर किया है? ये देश की सबसे आरामदायक और सबसे आधुनिक ट्रेन है और हमें खुशी इस बात की है, ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी पहचान वंदे भारत ने की है। ये लगातार हम ऐसी ट्रेन्स, अब देश में लगभग 31 वंदे भारत ट्रेन हो गई और मार्च 2024 तक हम 75 वंदे भारत ट्रेन को पूरा कर देंगे। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस देखिए, 24 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगेंगे दिल्ली से मुंबई जाने में। यू कैन डू मोर रोड ट्रिप्स। यही नहीं, ये जो आप कारगिल जंस्कार देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ किलोमीटर चढ़ने के लिए भी 8-8 घंटे लगते थे। यहाँ पे टनल बना दिए 14,000 फीट की हाइट पे, और दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल, अटल टनल, हिमाचल प्रदेश के मनाली में रोहतांग पे बनी, रोहतांग टनल जो अटल टनल है। ये भारत में आज क्या क्या हो रहा है। अगर आप चिनाब नदी पे एक पुल देखेंगे रेलवे का, तो इतना सुंदर और इतना आधुनिक है, बिल्कुल आत्मनिर्भर है। वो आईफिल टावर से भी 100 मीटर बड़ा है, ऊंचा है। आज हम कह सकते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे लंबे, सबसे बड़े। इस तरह की बात करने का आज इंडिया में बात होती है कि सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की कहां पर है? कहां पे? गुजरात में केवड़िया गांव में सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सबसे ऊंचा पुल चेनाब नदी पर जम्मू में है। सबसे लंबी सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरह से सबसे लंबे रोड नेटवर्क से लेके अब आप कहीं पे बात करिए, भारत का नाम उन चीज़ों में आ रहा है जहाँ पे पहले कहीं नहीं आता था। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में भी हमारे युवाओं के मुकाबले, यानी कि लड़कों के मुकाबले लड़कियाँ की संख्या भी उतनी ही नज़र आ रही है। जहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में अगर देखें
जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स में मैं जाता हूं, अगर 100 लोगों को वहां पर सम्मानित किया जा रहा है तो 100 में से 70 से ज़्यादा लड़कियां होती हैं। इसका मतलब लड़कों को पीछे छोड़ के शिक्षा में लड़कियां ज़्यादा आगे निकल गई हैं। और अगर खेलों में भी देखूं तो हमारे बहुत पीछे पहले महिलाएं होती थी, लेकिन आज नई ऊंचाइयों पर जहां महिला वहां पर पहुंची, वहीं पर दुनिया के सबसे ज़्यादा महिला पायलट भी किसी देश पे है तो भारत में है। फौज में भी, चाहे हमारे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, वहां पे भी महिला अधिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कुछ और करने वाला हूँ। पार्लियामेंट से लेके असेंबली तक महिलाओं की तादाद कैसे बढ़े, वो एमएलए से लेके एमपी कैसे बने, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। मोदी जी ने वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना तो लाए, लेकिन अब वुमेन एम्पावरमेंट से वुमेन लेड एम्पावरमेंट की ओर कैसे बढ़ना है। वो नारी शक्ति वंदन बिल के पास होने से अब पार्लियामेंट और असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए इंश्योर कर दी है। भविष्य में आप में से बहुत सारों को मैं, हो सकता है कईयों को विधानसभा में तो कईयों को संसद में अपने साथ देखूंगा। आशा करता हूं आप भी पॉलिटिक्स में आएंगे और समाज में परिवर्तन लाएंगे। ये शुरुआत हुई 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। भारत में औसतन 870 लड़कियां थी 1000 लड़कों के मुकाबले, आज 1020 लड़कियां हैं 1000 लड़कों के मुकाबले। तो बेटी बची भी और बेटी आगे भी बढ़ी। कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में भी अंकुश लगा और बेटी को पढ़ाने के लिए जहां शिक्षा उपलब्ध कराई गई, वहीं पे स्कूलों में शौचालयों के निर्माण किए। नहीं तो 5वीं कक्षा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियां स्कूलों में नजर नहीं आती थी, वहां पे बदलाव देखने को मिला। महिला घर में ही डिलीवरी करती थी, गर्भवती महिलाएं, अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बल दिया गया। उनका एम्बुलेंस का खर्चा, डिलीवरी का खर्चा और उनको न्यूट्रिशन फूड से लेके जेब खर्च तक देने का काम भी भारत सरकार करती है, जिससे बच्चों की मृत्यु भी कम हुई और महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं आई। इसी तरह से ही बहुत सारी और योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को फ़ायदा मिला। ये सारी योजनाओं के नाम यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन खेलों का मैं यहाँ पर थोड़ा सा बल जरूर देना चाहूँगा, वो आगे दे देता हूँ। ये नारी शक्ति ने कैसे आगे बढ़े उसका सारा यहाँ पर आंकड़ा है। मुद्रा लोन भी सबसे ज़्यादा मिले तो महिलाओं को 28 करोड़ मिले हैं। मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों की थी, अब 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव कर दी है। और प्रधानमंत्री आवास भी 2.5 करोड़ महिलाओं को मिला है। तो वहीं पर 311 ITIs खोले गए हैं केवल महिलाओं के लिए। इसी तरह से ही उज्ज्वला योजना का लाभ भी महिलाओं को मिला और 10,400 से ज़्यादा डिफेंस में आज महिलाओं की भर्ती हो पाई है। ये भी पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के समय हुआ। ये खेलो इंडिया में आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है कि कैसे प्रवीण हुड्डा से लेकर निखत जरीन तक, ये सबकी फ़ोटो आपको इसमें नज़र आ रही है। बॉक्सर्स हैं हमारी, इनमें से 4 वर्ल्ड चैंपियन हैं आज। खेलो इंडिया कैसे, 2014 में तो हम रियो ओलंपिक्स में मात्र 2 मेडल ला पाए थे, लेकिन मोदी जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की। बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एथलीट इज नॉट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी। सारा खर्चा भारत सरकार का है और साथ ही साथ जेब खर्च, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस 6 लाख रुपया ये भारत सरकार देती है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे सैकड़ों एथलीट टॉप स्कीम के अंतर्गत खेल भी रहे हैं, मेडल भी जीत रहे हैं। और जो खेलो इंडिया अभियान है, इसको पहले 4 साल के लिए 3,000 करोड़ मिला था, बहुत सफल रहा। अब अगले 5 साल के लिए 3400 करोड़ रुपए की मंजूरी हो गई है। और खेलो इंडिया के यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश ने बहुत सफल तरीके से पिछले साल किया और यहां पर 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, उसमें से 21 महिला एथलीट ने तोड़ने का काम किया। हमारे देश में ये आंकड़े आपके सामने कि खेलो इंडिया से कितना फायदा मिला है। 2014 में 600 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीए के सरकार में कांग्रेस के समय बन रहा था, आज 3000 करोड़ का बन रहा है। हम 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाकर देंगे, 10 साल में नहीं, इसी 1 साल में 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाकर देश के हर जिला को दे देंगे। इससे खेलों को बढ़ावा भी मिलेगा। 1000 कोचेस की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं, लगभग 450 की कर दी है।
युवा साथियों, खेलों में भारत का नाम लगातार आगे बढ़ रहा है। कहाँ 2 मेडल थे, अब हम वहाँ से बढ़ के 2 से 7 मेडल हमने टोक्यो ओलंपिक्स में जीते, 19 मेडल पैरालंपिक में जीते, 20 मेडल डेफ ओलंपिक्स में जीते, 61 मेडल हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते, 22 गोल्ड मेडल थे। थॉमस कप हम कभी नहीं जीते थे बैडमिंटन का, हमने वो भी गोल्ड मेडल जीता। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 60 साल में हम लोग 18 मेडल जीते थे। इस बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने एक ही साल में 26 मेडल जीते, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं। और अभी जो एशियन गेम्स हो रही हैं वहां अब तक हमारे 91 मेडल हो गए हैं और 100 का आंकड़ा हम पार करने वाले हैं। युवा साथियों, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपके सामने जो हमारे खिलाड़ियों के हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। आप यहाँ पे देखिए, सशक्त भारत की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉर्डर सिक्योर्ड हों। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ साथ लगते इलाकों में नक्सलवादी जिले भी बहुत सारे थे। बाहरी और आंतरिक दोनों सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमने दोनों तरफ काम किया। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स ने हथियार डाल दिए हैं जिससे वहां पर पीस हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई चली और जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा संकट होता था, आर्टिकल 370-35A स्पेशल स्टेटस के कारण, उससे भी जो 70 साल से पीड़ा थी उससे भी सदा सदा के लिए मुक्ति मोदी सरकार ने दिला दी है। आर्टिकल 370-35A अबॉलिश कर दिया है। हमारे बॉर्डर को और सिक्योर करने के लिए वहाँ पर हज़ारों किलोमीटर की सड़कें बनाई गई, नए एयरपोर्ट बनाए गए, रेलवे लाइन तक वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। 44% इंसिडेंट यानी कि आतंकी घटनाओं की रिडक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर में। पथराव की घटनाएं तो बिल्कुल बंद हो गई। 77% रिडक्शन हुई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में और 76% रिडक्शन हुई है नॉर्थ ईस्ट में। आप कल्पना कीजिए कितना खून बहता था, उसमें कितना बदलाव आया है। और ये देखिए रीडिफाइनिंग वर्ल्ड ऑर्डर। बताइए कहाँ की फोटो है? यूक्रेन में क्या चला था? वॉर चली थी। हमारी ओर से क्या चला था? ऑपरेशन गंगा। हाथ में तिरंगा और ऑपरेशन गंगा। और युद्ध की भूमि से तिरंगे की ताकत को देखिए कि कभी तिरंगा जम्मू कश्मीर में फहराने पर भी मेरे जैसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया था। जब मैं सांसद था, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, मेरे साथ उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन अरुण जेटली जी और सुषमा जी को मेरी यात्रा में शामिल हुए, उनको भी जेल में डाल दिया तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में। जम्मू कश्मीर में रोक लगा दी। आज उसी तिरंगे की ताकत मोदी सरकार में इतनी बढ़ गई है कि यूक्रेन की भूमि में हिंदुस्तानियों के साथ साथ अन्य देशों के युवा भी हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय बोलकर निकल लिए। सच ये उभरते भारत की ताकत है। तभी टैगलाइन है, यही समय है। तो सही समय का सदुपयोग भी करेंगे। और इंडियाज डेकेड, दिस इज इंडियाज टाइम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, G20 की प्रेसिडेंसी हो, चंद्रयान मिशन हो, एशियन गेम्स की सफलता हो, 220 करोड़ वैक्सीन लगाने की बात हो, या 157 कंट्रीज को मेडिसिन, वैक्सीन से लेकर पीपी किट्स देने का काम दुनिया का एक देश कर पाया, उसका नाम भारत है। तो दुनिया भर में भारत की धूम भी है मेरे भाई और बहनों। इसलिए हमें ये सब चंद्रयान मिशन से लेकर ऑपरेशन गंगा तक ये भारत की सफलता है। और इसलिए जो आप इसमें देखेंगे, ये दुनिया के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं। जहां एक और इटली की प्रधानमंत्री ने कहा, राहुल गांधी जी माने ना माने, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे प्रिय नेता हैं। और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा मोदी जी आप अमेरिका में इतने लोकप्रिय हो कि मुझे भी आपके ऑटोग्राफ लेने की इच्छा हो रही है। ये आज भारत के नेता का वो कद बड़ा है। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव की बात है मेरे भाई और बहनों। दुनिया भर के बड़े बड़े अवार्ड्स मोदी जी को मिले। बेस्ट
कंट्री का जो सर्वोच्च अवार्ड था वो भी मिला। लेकिन सबसे बड़ा क्षण वो था कि पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मोदी जी का स्वागत करते हुए उनके पांव छूकर गले लगा लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने पूछा वहां पर कि आपके देश में जिसको आप बहुत मानते हो उसके बारे में क्या होता है, तो एम्बेसडर ने वैसे बताया कि हमारे यहाँ तो पांव छूने की आदत है, बुजुर्गों के पांव छूते हैं, बड़े लोगों के पांव छूते हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये करने वाले हैं, लेकिन कितना सम्मान होगा मन में। उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ संकट था, कोविड था, तब किसी दुनिया के बड़े देश ने नहीं देखा, मोदी जी ने उस समय भी मदद पहुंचाने का काम किया था, मेरे देश के लोगों को बचाने का काम किया। युवा साथियों, अगर आप ये देखेंगे, ये क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। सिल्क रूट का नाम सुना आपने? क्या गाने बजाने वाला कि दूसरा? कौन सा दूसरा, कौन सा है बताओ? ट्रेड का रूट था ना। कब था? अब अगला सवाल आपके लिए कल से यही है, जाके आज ही इंटरनेट पे सर्च करना सिल्क रूट कब था और भारत का दुनिया के ट्रेड में कितना बड़ा हिस्सा था, और कैसे मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने लूट के हमें किस स्थिति तक पहुंचा दिया, और उसके बाद जितनी सरकारें आई वो क्या करती रही। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, ये भविष्य के 1000 साल कम से कम उसके लिए एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो भारत से शुरू होकर मिडिल ईस्ट से होकर यूरोप तक जाएगा। भारत के ट्रेड को कम से कम 50% वृद्धि मिलने की आशंका है। ये किसी और ने संभव नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने करवा कर दिया है। और आप जैसे बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कोई काम करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक फार्मर से लेके एक ट्रेडर, एक मैन्युफैक्चरर तक सबको इसका लाभ मिलने वाला है। रॉबस्ट आउटकम अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, जो मॉर्गन स्टैनली से लेके एसबीआई की रिपोर्ट से लेके अन्य ने कहा है कि भारत कहां से कहां पहुंच रहा है। ये हेडलाइंस आज भारत ये बना रहा है, वर्ल्ड बैंक से लेके बाकी सब। अब आप ये देखिए, हम इंडेक्स क्या कहता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम कैसे आगे बढ़े, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम कैसे आगे बढ़े। और यही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी में हम 8वें नंबर पे थे, 3रे नंबर पर आ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 2रे नंबर पे आ गए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने जो कदम उठाए वो 142 में से 63वें नंबर पे हम आ गए हैं। ग्रोथ इंडिकेशन साफ दिखाती है कि अगर बिजली का भी मैं बात करूं, आज देश के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम भी किया। इकोनॉमिक ग्रोथ आज सब तरफ है, और सैटेलाइट फोटोज हमें दिखाती है कि कैसे देश के कोने कोने में इलेक्ट्रिफिकेशन होने से लेकर डेवलपमेंट कैसे पहुंच रही है। यही नहीं मेरे युवा साथियों, भारत का जो सक्सेस है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड है, उसकी हेडलाइन, क्योंकि अखबार जो लिखती है 2013 में लिखती थी कि भारत दुनिया के स्लोएस्ट रेट में से एक उसमें से है। आज क्या लिखती है, इंडिया टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 3 years। इसी साल नहीं, अगले 3 साल तक के लिए भी। उस समय लिखते थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोज टू 20-year लो, आज लिखते हैं पीएमआई हिट्स 31 month हाई। उस समय लिखते थे बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 50% उसमें वृद्धि हुई, आज लिखते हैं बैड लोन्स फॉल्स टू 10-year लो बाय 3.9%। ये बदलाव है। जब मैं कहता था रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, आज ये हेडलाइंस में उसको देखने को मिलता है कि कैसे देश में हर क्षेत्र में एक बदलाव आया है। और ये क्या है, नीचे से पढ़ के बता रहे हो, कहां से बन के आया है? ये आत्मनिर्भर भारत का एक और उदाहरण है कि ये वॉरशिप किसी और ने नहीं, जहां से फाइटर जेट उड़ भी सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, बढ़ते भारत के कदम है मेरे भाई और बहनों। ये लास्ट स्लाइड है 9 साल और 9 बदलाव विकास के। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्राम भारत में चला, बैंक खातों से लेकर मुद्रा योजना तक, महिलाओं को इज्जत घर देने से लेकर महिलाओं को घर, पक्के मकान देने तक, करप्शन फ्री लोन या करप्शन फ्री डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके 32 लाख करोड़ रुपए उनके खातों में डाला गया, जिससे 3 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार का बचा है।
12 करोड़ जॉब्स एमएसएमई सेक्टर में क्रिएट की गई। तेजस जैसे 100 हम लोग तेजस बना रहे हैं, मार्क 1, जो भारत का एक फाइटर जेट है। चंद्रयान मिशन सफल रहा, अब चंद्रमा तक ही नहीं रुकना है, सोलर मिशन के लिए आदित्य L1 भी बिल्कुल सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को एक जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 35 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। मात्र 12 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा है और 8 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर बने जब मुद्रा योजना से उनको लाभ मिला है। भाई और बहनों, तो मैं यहीं पर छोड़ता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, ये भारत की उपलब्धियां हैं। लेकिन भारत की उपलब्धियां तब है जब भारत के लोगों ने सही जगह वोट डाला, सही सरकार को चुना और सही नेता ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आपका एक सही निर्णय, आपका एक सही वोट भारत को फिसलती हुई, थकी हुई अर्थव्यवस्था से, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। और भारत का एक नेता दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरता है। ये सब भारत के वोटर्स के कारण हुआ है, भारत की जनता के कारण हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। युवा साथियों से कहता हूं, जो भी आपको एक क्षेत्र अच्छा लगे, जहां आपको लगता है यू रियली एग्री विद द गवर्नमेंट, और इनके साथ आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पर जरूर शेयर करें, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। लेकिन युवा साथियों, देश केवल सरकार नहीं बनाती, समाज सरकारें मिलकर बनाती हैं, और ये तो युवाओं का देश है, दुनिया की सबसे बड़ी युवावादी। यू आर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। So don't wait for tomorrow, start acting today. This is the right time to act. We should not delay it. And if you want to see change in any part, in any area, begin with yourself, begin at home. You should be the change maker. Let us start, let us join hands and work for that. Pick up one area where you want to see the change. From cleanliness drive to education to healthcare to any other sector to sports or maybe environment. Your area of interest. Pick one area where you want to see the change and be the change maker for the next 25 years. ये अमृत काल की शुरुआत है। भारत के 75 साल आज़ादी के हुए, जब 100 साल होंगे उससे पहले हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे। मैं हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अनुराग जी, आप जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के बीच में आए, उन्हें अपने देश की उपलब्धियों से गौरवान्वित किया, अपने उद्बोधन से उन्हें समझाया और उन्हें जागृत किया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, यही समय है, सही समय है। सही समय है।